इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ये चैप्टर काफी हद तक तो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब हेडिंग डालो उसके नीचे चार्ज, हेडिंग डालो नीचे चार्ज। अभी बताओ मेरी तरफ देखो, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। लिखो पहला पॉइंट, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज स्केलर and it can be positive or negative, and it can be positive or negative. Second point, बच्चों चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की जो यूनिट है SI यूनिट, दैट इज कूलम। लिखो द SI यूनिट, द SI यूनिट of charge is coulomb, C से डिनोट करना is coulomb। बच्चों the SI unit is coulomb, बट इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन को C से डिनोट नहीं करते। ये बताओ अच्छा मुझे, व्हाट इज करंट? करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज एम्पियर, करंट इज एम्पियर। सो चार्ज इज current into time, तो लिखो the dimension of charge A for ampere and T for what? Time. So AT is the dimension of what? Charge. C से denote नहीं करते, AT, where A is ampere and T is what? Time. बच्चों, when a body is charged, when a body is charged, there is always transfer of electron. There is always transfer of electron. Protons cannot transfer because protons are inside the nucleus. So whenever a body is charged, there is always transfer of electrons. So if I say a body is positively charged electrons will become less and the mass of the body will decrease. And if I say a body is negatively charged, the number of electrons will increase and the mass of the body will increase. Next point likho, when a body is charged, when a body is charged, there is transfer of electrons. There is transfer of electrons. Why can't protons move? Because protons are inside the nucleus. उसी में आगे लिखो, if a body is negatively charged, if a body is negatively charged, the number of electrons would increase. The number of electrons would increase and the mass of body will increase. And the mass of body will increase. कितना क्लियर हुआ? अब यहाँ देखो, two charges of same polarity, two charges of same polarity will repel. Plus plus will repel, minus minus will repel. Two bodies with opposite charges, plus and minus, will attract. But ये देखा गया, a charged body with a neutral body, a charged body and a neutral body also attract. वापस, attraction can be between two bodies having opposite charges, or it could be between a charged body with a neutral body. तुम बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, ये वाली जब बॉडी अगर चार्ज है और ये बॉडी अगर न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल बॉडी के चार्ज को ये वाली बॉडी चार्ज को थोड़ा बहुत क्या कर देगी, रीडिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, तो जो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट करवा लेगा नेगेटिव, और यहाँ पे ले जाएगा कौन सा, पॉजिटिव। पास में कौन सा आ गया, नेगेटिव।
इस पे चार्ज कैसा था? पॉजिटिव. So ultimately it will result in what? Attraction. So what I want to tell is, if there is force of attraction, then there are two possibilities. One, the two bodies will have opposite charge, or one body is charged and the other one is neutral. Likho. If two bodies have electrostatic attraction, then the bodies may have opposite charges. Or one body is charged and the other is neutral. ब्रैकेट में लिखो. This is induction. तो मैंने ये बताया कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही हैं? अट्रैक्ट. तो एक पे प्लस होगा, एक पे माइनस, या एक पर चार्ज होगा, दूसरी बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल. एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट? इंडक्शन. आगे लिखो एक और पॉइंट. सुनो, अच्छा, चार्ज की एक मिनिमम वैल्यू है, and that is 1.6 into 10 to the power minus 19. इसमें लिखो, charge has minimum value. बेटा वो मिनिमम वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. This is what value? Minimum. This is minimum value of charge. अभी लिखो मत. और साथ में ये भी बताया गया, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था मिलिकन. सुनो, मिलिकन ने एक चीज बताई. उसने ये बताया कि किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा तो वो जो E है उसका एक एग्जैक्ट मल्टीपल होगा. मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज E का एक मल्टीपल. इट कैन बी 1E, 2E, 3E, 4E, 5E. इट विल बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ E. इट कैन नॉट बी 1.2E. इट कैन नॉट बी 1.5E. इट कैन बी 15E. इट कैन बी 20E. मतलब जैसे मैं बोलता हूं 10 पैसे मिनिमम अवेलेबल है, 10 पैसे, तो आपके पास 15 पैसे नहीं हो सकते. आपके पास 10 पैसे हो सकते हैं, या 20 हो सकते हैं, या 30 हो सकते हैं. 35 नहीं हो सकते, 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं. बिकॉज जो मिनिमम आपके पास कॉइन अवेलेबल है दैट इज ऑफ 10. तो अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तुम्हारे पास 50 पैसे हो सकते हैं. 10 कैसे कितने? 5. 60 हो सकते हैं. 10 कैसे कितने? 6. तो मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करा कि चार्ज की एक तो मिनिमम वैल्यू है कितनी? 1.6 into 10 to the power minus 19. साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो E का एक एग्जैक्ट मल्टीपल है. और वो मल्टीपल एक इंटीजर मल्टीपल. इट कैन नॉट बी 1.2E. इट कैन नॉट बी 1.5E. इट हैज टू बी एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ E. So it was called quantization of charge. It is called what? Quantization. Quantize कर दिया. Quantize कि यही हो सकता है. That means Q is equal to NE, where N is equal to 1, 2, 3, 4. ऐसे करके लिखो इसको.
अब बेटा हेडिंग डालो, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges, electrostatic force between 2 point charges. Q1 Q2 are 2 point charges. इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे दो मासेस के बीच में एक फोर्स होता है, वैसे ही अब मैं इन दो, मैं जो पढ़ाऊंगा ना 2-3 दिन तुम्हें वही लगेगा जैसे तुमने ग्रेविटेशन का चैप्टर है, एग्जैक्टली उसी लाइन पे चलता है, सब कुछ वैसा है। तुमने वहां सीखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वहां तुमने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां तुमने सीखा था कि अगर एक मास को छोड़ देते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में तो ड्यूरिंग मोशन द टोटल एनर्जी रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। यहाँ भी अगर एक चार्ज को मैं छोड़ देता हूं तो ड्यूरिंग मोशन द टोटल एनर्जी ऑफ द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। एग्जैक्टली सब कुछ वही है। वहां पे तुमने एक रिंग का फील्ड सीखा था, शेल का सीखा था, सॉलिड बॉल का सीखा था, यहां पर भी सब कुछ वैसे ही चलेगा। तो अभी दो चार्जेस हैं, कितना डिस्टेंस इनके बीच में बोलो, r। इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर ये सेम पोलैरिटी के हैं बच्चों तो रिपल्शन होगा। अभी लिखो मत, बेटा बोर्ड पे देखो, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर तो है, साथ में ये क्या आ गया, एक कांस्टेंट 4 पाई। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज सम कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अभी लिख रहे हैं, रुको। अभी बेटा रुक जाओ, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं 8.8 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी अगर यूनिट की बात करते हो, यूनिट, तो परमिटिविटी यहां गया, ये कूलम इंटू कूलम, बोलो क्या हुआ, कूलम का स्क्वायर। डायमेंशन नहीं, यूनिट की बात कर रहा हूं, तो कूलम तो लिख सकते हैं ना यूनिट में, कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, और फोर्स के लिए न्यूटन, तो इसकी यूनिट आ गई इसकी डायमेंशन कूलम के लिए क्या लिखा बोलो, 80। ये न्यूटन, न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये लेंथ का स्क्वायर। तो देखो न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एल स्क्वायर, तो ये बन गया दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट योर परमिटिविटी। कहीं गलती है क्या? न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये लेंथ का स्क्वायर, और कूलम इज 80, वेयर ए इज एम्पीयर एंड टी इज व्हाट, टाइम। तो ये जो आया, दिस इज व्हाट योर डायमेंशन ऑफ व्हाट, परमिटिविटी। व्हाट इज द फॉर्मूला, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई परमिटिविटी r स्क्वायर। सिंपल लिखो।